our constitution, when we start our constitution, the first question is there, what is constitution? Then another question is there, why do we need constitution? Okay, संविधान क्या है और why do we need constitution? Another question is there, how the constitution of India was written? भारत का संविधान कैसे लिखा गया? Okay, so what is constitution? So constitution is the set of rules or law according to which the government of a country functions. वह नियम कानून का संग्रह जिसके अनुसार किसी भी देश की सरकार चलती है. ओके, एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? सो टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ constitution, we should know the facts that is there in your book. So one by one, first point is there, define the nature of country's political system. Define the nature of a country's political system. Second point is there, provide certain significant guidelines that help in decision making within the democratic setup. Okay, ensures that the majority groups does not dominate the minority. Okay, guard our national interest. These are the needs or purpose to serve Indian Constitution. That should be in our mind. Okay, now how the Constitution of India is written. 10 पॉइंट्स लगभग आपके बुक में दिए हुए हैं. 5 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है. कोई भी 5 पॉइंट्स याद कर लोगे क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटेन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड यू नो responsibility was given to 299 members. They were elected or they were sent from different areas, from the different section of the society, from the different cultures of the society, from the different religions of the society to the Constituent Assembly to draft Indian Constitution. Around 300 people, 299 people were the member of the Constituent Assembly. कितने लोग संविधान सभा के मेंबर थे? तो 299 were the member of Constituent Assembly and they drafted. Okay, it was the combined effort of the all members of the Constituent Assembly to in drafting of Indian Constitution. ये सबका कंबाइंड एफर्ट था और ये कंबाइंड एफर्ट्स ही भारत के संविधान को का निर्माण किया. ओके, फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन प्रेसिडेंट वाज अपॉइंटेड एंड ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Again question is there, who was the president of the Constituent Assembly? Answer is
Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. Another question is there, who was the chairman of the drafting committee? One drafting committee was formed there, and the head of the drafting committee was Dr. V.R. Ambedkar. ठीक है, V.R. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और प्रेसिडेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड इट वाज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, और मेंबर कितने थे? 299, एंड आउट ऑफ 299, ये भी दिमाग में रखने वाली बात है, आउट ऑफ 299 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं भी शामिल थी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में. ओके, आपके बुक में कुछ नाम भी दिए हैं, सबका नाम तो नहीं दिया है, कुछ कुछ नाम आपके बुक में दिए हुए हैं. जैसे आप देख सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, मौलाना आज़ाद, के मुंशी, जेपी कृपलानी, राजगोपालाचारी, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे शामिल थे. ठीक है, बहुत सारी महिलाएं भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य थी. आगे की बात करते हैं. We have to read the features of Indian Constitution, but before features, how the Constitution of India was written. जब संविधान सभा बनाई गई थी तो सभा के लोग जो थे अपने लेवल से सारे लोग काम कर रहे थे. या इस समय जब संविधान बन रहा था तो दूसरे देश के संविधानों पर भी नज़र डाला गया कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है ना, कनाडा का क्या है, इंग्लैंड में क्या कैसे शासन व्यवस्था चलाई जा रही है. तो द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फीचर्स मतलब खासियत है ना, दूसरे संविधान की खासियत, दूसरे संविधान की विशेषताओं पर भी विचार किया गया. और जो बात अच्छी लगी, ये रूल्स रेगुलेशन जो अच्छा लगा, जो सिस्टम अच्छा लगा दूसरे देशों का, उस सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया. ओके, द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वर अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके साथ साथ बहुत सारे इंडियन थे जिनका अपना विचार था, इंडिया का अपना बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन था, उस पर भी विचार किए गए. उसको भी अगर संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, मेजोरिटी ने सपोर्ट किया, तो वो फिर संविधान में अडॉप्ट कर लिए गए. ठीक है, आप के बुक में दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ से क्या अडॉप्ट किया गया, कहाँ से क्या हमने एक्सेप्ट किया. ठीक है, अमेरिका से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, आपके बुक में दिया हुआ, एक बार आप देख लोगे. ठीक है, फीचर्स बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया हुआ है, एक फिगर बना बना करके ड्यूइनो में दे रखा है. ओके, नाउ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सेकंड क्वेश्चन, why do we need constitution? How the constitution of India was written, and who was the president of the constituent assembly, who was the chairman of the drafting committee. Now the important question having 5 marks, write any 5 features of Indian constitution. भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं को लिखें. ओके, सो 5 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फीचर इज देयर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड.
भारत का संविधान एकदम यूनिक है। व्हाई इट इज सो? भारत का संविधान यूनिक कैसे हो गया भाई? भारत का संविधान यूनिक कैसे हो गया? तो हम, कोई बच्चा यूनिक कैसे हो जाएगा, या कोई सामान हम ले रहे हैं तो यूनिक कैसे हो जाएगा? क्लास की बात करते हैं। अगर एक बच्चा, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब में जो खासियत है, सबकी जो विशेषता है ना, सबका जो मेरिट है उस मेरिट को अडॉप्ट कर ले, सबके मेरिट को सीख ले और सबके बुराइयों को छोड़ दे, तो बच्चा सबसे अच्छा होगा या नहीं होगा? जब हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो बड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं, आप समझने का प्रयास करोगे कि जब कभी हम ठेले पे वो झाल मुड़ी खाते हैं, है ना, थोड़ा चना, थोड़ा मूंगफली, थोड़ा सबसे लिया और मिला करके हमने वो तैयार किया झाल मुड़ी और वो खाते हैं, वो टेस्टी होता है या नहीं होता? कहने का अर्थ है कि जो फीचर्स जो थे दूसरे देश के, जो फीचर्स थे, है ना, व्हाट आई टॉट कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, संविधान, सारे संविधान पर विचार किए गए और जिस संविधान में हमें खासियत नज़र आई कि यहाँ से ये लेना चाहिए, यहाँ से ये लेना चाहिए, यहाँ का ये अच्छा है, सारी अच्छाइयों को हमने ग्रहण कर लिया। जब हम सारी अच्छाइयों को ग्रहण कर लिया तो हम बहुत अच्छे हो। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा संविधान भी है। 395 आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? इट मे बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 395 आर्टिकल्स, 22 parts and 12 schedules are there in Indian Constitution. How many parts? 22 parts. How many schedules? 12 schedules. How many articles? 395 articles are there in Indian Constitution. अब तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा है, ठीक है? तो these are the features of Indian Constitution. And another features is there. The Indian Constitution is rigid as well as flexible Constitution. भारत का संविधान जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। How it can be possible? Rigid Constitution, it may be possible कि rigid Constitution, it may be possible flexible Constitution. How it may be possible rigid as well as flexible? रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है? बहुत सारे देश का संविधान है जो चेंज करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल और नामुमकिन है। बहुत सारे देश का संविधान ऐसा है जो चेंज इजीली किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, है ना, बट नॉट इजी टू चेंज, है ना? इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। By the way of amendment, we can change our constitution. Amendment process is there in Indian Constitution. Okay? और हम amendment का हिंदी होता है संविधान संशोधन। So by the way of impeachment, amendment, we can change anything in our Indian Constitution, but it's not easy, but not impossible. बात समझने की है कि आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है, किया जा सकता है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत। ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर जो मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था। वर्ड इज गिवन इन योर बुक प्रियम्बल, एंड क्वेश्चन इज देयर व्हाट इज प्रियम्बल? व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल है क्या? द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Preamble is introduction of Indian Constitution, and preamble is also known as the soul of Indian Constitution. Preamble को हम बोलते हैं soul of Indian Constitution. Soul of Indian Constitution में सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की आत्मा. अब आप सोचोगे, आत्मा समझ रहे हो, शरीर विशाल है और आत्मा छोटी सी है. अगर शरीर से वो आत्मा निकल जाए तो शरीर बेकार. अगर संविधान से उस प्रेम्बल को हटा दिया जाए, संविधान बेकार. तो हाउ एंड व्हाई इट इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, हम पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी. द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, ओके, टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड लर्न द वर्ड्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम्बल ऑफ इंडिया. एक एक करके एक एक वर्ड को हमें समझना होगा. एंड फर्स्ट वर्ड इज देयर, वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. सुनने में कैसा लगा? बहुत सिंपल सा, हम भारत के लोग. अब जरा इसका अर्थ समझो. क्यों हम भारत के लोग? क्यों नहीं हम हिंदू भारत के लोग? हम हिंदुस्तान है, हम हिंदू भारत के लोग. क्यों नहीं हम मुस्लिम भारत के लोग? हम बिहारी भारत के लोग, हम पंजाबी भारत के लोग, हम बंगाली भारत के लोग. क्यों नहीं? वाई हम भारत के लोग. ये हम वर्ड का कितना, वी द पीपल ऑफ इंडिया का कितना इंपॉर्टेंस है वो समझोगे. इट मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रीजन, रिलीजन, है ना. धर्म, जाति, मजहब के नाम पे भारतीयता होने में कोई संदेह नहीं है, उस पर कोई प्रश्न नहीं लग सकता, है ना. दो जो लिव इन इंडिया दे आर इंडियन. जो भारत में रहता है वो भारत का नागरिक है ना. और हम भारत के लोग, यानी भारत में जो भी रह रहा है वो भारतीय है ना. इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया. अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं होता तो संविधान की स्थिति क्या होती है समझो. ओके, लाइक दैट सो मेनी वर्ड्स आर देयर. डेमोक्रेट, रिपब्लिक, सेकुलर, सोवरेन, ये और सबका अपना अपना एक विशेष अर्थ है. तो नेक्स्ट पीरियड में जब भी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे व्हाट इज हाउ इंडिया इज अ रिपब्लिक, और हाउ इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, हाउ इंडिया इज अ सोशल और व्हाट सोवरेन स्टेट्स. बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे. ओके.